Tasneem Fatma. Welcome back to my YouTube channel Wali Teaching Point. So in this video I'm going to start one of the most important chapter, or we can say one of the most interesting chapter of class 10, which is trigonometry. So let's start first. The first question is, what is the use of trigonometry and what will we study in this chapter? So come towards the pictures. The first picture is about the Burj Khalifa and the second is mountain. First question is, would you able to find the distance or height of these buildings or this mountain? And the second question is, can we measure the distance between two planets or between the moon and the stars? So it's quite difficult to find these measurements. So with the help of trigonometry, we can easily find the measurement of this height, the height of this building and the height of this mountain, or the distance of two planets. So we can write here, trigonometry is used to find the distance, heights and angles that cannot be measured easily. जो हमें आसानी से, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, जिनके हाइट को या डिस्टेंस को या एंगल को, तो वहां पर हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं. नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री. So the answer is, trigonometry is the branch of mathematics which deals with the relation between the sides and angles of a triangle. Basically trigonometry जो है वो deal करता है right angle triangle में. तो हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के रिलेशन, राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड और एंगल के बीच में रिलेशन है, उसके बारे में हमें इस ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में पढ़ना होता है. Trigonometry comes from the two Greek words trigon and metron, where trigon means triangle and metron means measurement. Basically, we can say trigonometry is just the measurement of all the things possible in a triangle. एक triangle में जितनी भी things possible हैं, चाहे वो side हो या angle हो, हम उन्हीं के measurement के बारे में इस chapter में पढ़ेंगे. तो start करते हैं. सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पहले बेसिक चीजें पढ़नी है. व्हाट इज द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो. तो देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो. फर्स्ट इज साइन, सेकंड इज कोसाइन, देन tangent, then cosecant, second then cotangent. We can name as sine as a sine, cosine as a cos, tangent as a tan, then cosec, sec and cot. Now when these trigonometrical ratio comes into the function with the angle theta, it becomes like sine theta, cos theta, as we can write as cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta and cot theta. Then the question is, what is theta? So basically theta or any other Greek alphabets like थीटा हो, चाहे वो फाई हो या अल्फा हो, ये सब क्या है, ग्रीक अल्फाबेट्स. इसके अलावा इंग्लिश अल्फाबेट्स जैसे ए हैं, बी हैं, ये सब सिंपली क्या होते हैं, वो अननोन एंगल्स के, ये सब अननोन एंगल्स होते हैं जिनको हम डिनोट करते हैं इन अल्फाबेट से. ओके तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज. तो 6 जो है वो रिलेशन है इसके. The first 3 trigonometric ratios are reciprocal to the other 3 trigonometric ratios, and the other 3 trigonometric ratios are reciprocal to the first 3 trigonometric ratios. मीन्स ये है कि आपके जो फर्स्ट जो है, जैसे कि साइन थीटा है, देन साइन थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा को. तो वी कैन से दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cosec theta, सेम एज cosec theta इज इक्वल टू 1 बाई sin theta. और ये जो रूल है वो बाकी के 4 लोग जो है ना, ये पीछे जो 4 रेशियोज है ये भी सेम फॉलो करेंगे. ओके नाउ अब मूव करते हैं यहाँ tan थीटा की तरफ. tan थीटा का एक बेसिक सा फार्मूला हम लोग कह सकते हैं, एक फार्मूला है, tan थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा. मतलब sin थीटा और cos थीटा के एक रेशियो के बराबर होता है tan थीटा. अब हम मूव करते हैं आगे. Now come towards the properties of the right angle triangle. ये इसलिए लिखा है क्योंकि बेसिकली हमें इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है. तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमें पता है, देयर आर 3 angles and 3 sides in every triangle. There is a Pythagoras theorem where hypotenuse, the square of hypotenuse is equal to होता है p square plus b square. P denotes as a perpendicular and perpendicular denotes as a p and base denotes as a b. अब come towards these pictures. इस फिगर में थोड़ा ध्यान से देखना. First thing is that here b is the theta and here c is the theta.
ये हमें रखना है ध्यान, इफ द पोजीशन ऑफ एंगल is changed, then the side, their opposite side and the adjacent side will be also changed. मतलब ये कि अगर थीटा के सामने देखो अपोजिट साइड जो होता है थीटा के, जो भी पर्टिकुलर एंगल की हम बात करते हैं, तो इसके अपोजिट साइड में जो भी साइड्स होती है उसको हम डिनोट करते हैं परपेंडिकुलर से, और इसके एडजेसेंट साइड को डिनोट करते हैं बेस से। ओके, ये तो हमें पता है। तो जब कभी थीटा की पोजीशन चेंज होगी तो इन दोनों की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, यानी परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन चेंज होगी, एंड हाइपोटेन्यूज ऑलवेज भी रिमेन सेम, ये सेम ही रहेंगे, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। बस इसमें यहाँ पर ये इस बात पर ध्यान देना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज क्या होती हैं। तो इनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, P फॉर परपेंडिकुलर एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज। इसका एक फिर cos थीटा इज इक्वल टू होता है B बाई H, tan थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई B। अब ये जो बाकी के थ्री जो रेशियोज आए, ये तीनों इसके अपोजिट हो जाएंगे, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएंगे। मतलब कि साइन थीटा अगर P बाई H है, देन cosec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा H बाई P। cos थीटा अगर B बाई H है तो sec थीटा हो जाएगा H बाई बी, देन tan थीटा P बाई बी है तो cot थीटा हो जाएगा B बाई P। ठीक है, इसको भी याद करना जरूरी है। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, कम टुवर्ड्स द trigonometric table. It is one of the most important thing in this table. We have to find the all the values of trigonometrical function, which is sine 0 degree, which sine 0 degree, sine 30 degree, sine 45 degree, sine 60 degree, sine 90 degree। तो ये पर्टिकुलर इनका एक वैल्यू है जिसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आप इसको प्रॉपर डेरिवेटिव करके अगर सीखते हो तो फिर इसको याद करना आसान हो जाता है। तो प्रॉपर डेरिवेटिव जो है वो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगी, तो इसके लिए आपको इस वीडियो का पार्ट 2 भी आपको देखना पड़ेगा। पार्ट 2 में इसके सारे डेरिवेटिव्स, कैसे ये फार्मूला आया है, इतना सारा वैल्यूज इसकी आई हैं, उसको मैं वहां डेरिवेटिव करूंगी। इसके अलावा कुछ और भी बेसिक फार्मूलाज अभी भी बाकी हैं, तो हम इसको बाकी के हिस्से को पार्ट 2 में हम कंप्लीट करेंगे। सो आज के लिए यहीं पर एंड करती हूँ मैं इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जितना भी पॉसिबल हो। सो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।